23rd December, and then he also cleared IMA CDS on 29th January. 26 January. 26th January. Yes, sir. Okay, stories are, And only one candidate clearing. इसमें नहीं, उसमें मालूम. इसमें मालूम. So 20th. So we'll hear his story. We'll learn from his story. A story of a lot of hard work, sincerity, from a very simple, humble family, right? So when you are from a simple, humble background, only thing which pays you is your hard work and sincerity. Nothing else. Okay. And if you have lots of money, our parents have lots of money, then there are some other things. If not this, then they have some options open for you. But when you are from a simple family, you know that I have no options. Right? Then you sincerely work hard and you get success. The bottom line of the story is that whoever works hard, right, gets success. It may be little late, but he will get success. Okay, let's start the ceremony, and he's got some sweets also. Yeah. Monitor may be called. You have to command the class. A lot of change has been made. Right, so let's start. अभी एक class बाकी है संदीप सर की. Okay, please, Right. no more noise. That will be a short class, but before that, Sparsh is with us. He's on his way to join Indian Military Academy, Dehradun, and Sparsh cleared his first SSB from 32 SSB for NCC entry. This was on November 2023, December, and the next SSB he went to was on IMA, and that was on 26 January 2024, where he was successful in both these SSBs, in both cases merited, right? And now he's going to join Indian Military Academy, Dehradun, very short. So since and he's a graduate of BSc PCM from Bareilly College and belongs to Almora district. Okay. So without any further ado, I'll go over to him, hand over the mic, and request him to share his experience of both the SSBs. And for you as a listener, you must jot down some important points which he's sharing. What are things he was asked? How did he conduct himself? What was his modus operandi of preparation? All those things are very important part of candidate's journey to clear SSB. Okay, so over to you. Just you have about 10 minutes time. Keep it short, but keep the main points in mind. What you can have. Jai Hind everyone. My name is Sparsh Sindevdi. I belong to Almora, Uttarakhand. So I did my, as sir said, I did my BSc from Bareilly College, Bareilly. I did 3 years of NCC, did 11 camps also. I'm a national bronze medalist in map reading. I'm a district basketball player also. So I cleared my SSB on my 11th attempt and 12th attempt. I was screened out 6 times. And before this 11th attempt, which I got recommended from, I was continuously 3 times screened out, including CDS IMA entries. So it was a heartbreak for me. I went to the SSB where I did my return ticket also of the first day only for my 11th attempt. अभी भी स्क्रीन आउट हो जाएंगे. स्टार्ट हो जाएंगे तो देख लेंगे, चले जाएंगे घर, क्या है, आदत हो गई है. So gave my attempt as free mind. Yes sir. So I got screened in, and मेरा पहले भी ऐसा अटेम्प्ट रहा है after this AMAS 47 batch, where I was confident that I'll get recommended in that 1 year SSB Dehradun. But unfortunately something happened in my interview or conference. My conference went for 35 minutes sir, in that FSB. On the margin. On the margin sir. So I was pretty sure that if I get screened in, I will do good in the SSB. So I gave my best in that SSB also. Everything went well. बस लोग के साथ चलते गए.
whatever I learned from here, from Amas, I just revised that only. कुछ एक्स्ट्रा करने की मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कुछ वहाँ पूछा जाता नहीं है. Whatever you learn from here, remember this, keep revising it. Add on some things from your side, make the stories, words from your side. आपके लिए benefit रहेगा उस चीज़ का, क्योंकि आप you will remember it longer. So I gave my attempt well. My interview went for 1 hour and 15 minutes. But be calm and composed in whatever situation you are. Take one task at a time. Even it is screening. अगर आपका OIR है, चाहे आपका yes, so the interviewer, he was senior interviewer, so he asked me about have you taken any coaching earlier? So I said yes sir, I have taken coaching. From where? So I said I took coaching from Academy of Military Aptitude and Skills. So he said ये कहाँ है? मैंने भी नहीं करा. अमास सर, अमास नोएडा, तो ये बोलना वाला. So it was a funny experience in the interview also. It went for 1 hour and 15 minutes. Many questions were there, cross questions were there, even in on my personality, on my education, GS, GK. So prepare that in advance. Prepare your CIQs first of all in advance, because CIQ is your first image in front of the interviewer. आप अगर अपने CIQ को 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख के जाएंगे, you will not forget the sequence or the material you have wrote in that. So वो सब आप प्रिपेयर करके जाएं पहले से. स्क्रीनिंग में for those who are not getting screened in, जैसे मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, so keep your mind cool, calm and composed. I was also desperate to get screened in. Don't be desperate. It will harm you only. आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता चल रहा है, but the assessors who are sitting in front of you will notice each and everything, every single minute detail of yours. So keep calm, composed and give your best. और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. गिव योर बेस्ट, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते. जो टास्क है आपका टास्क लीजिए, टेक वन टास्क एट अ टाइम. वो हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ डजंट मैटर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क. सो आप अगर टैग देते हैं, वेट देते हैं, एक टास्क एक बार में देखिए, कैसा भी हुआ है वेट आप छोड़े तो ऐसा लगे कि 3-4 आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम छोड़े. Make any sentence which is meaningful in the word. Tag तो यहाँ जो आपने किया है in my that AFSP 9 pictures out of 11 were from this my Amas 47 batch only. In the 32 Jalandhar attempt, 8 pictures were there who I was already prepared. 20 SSB preview also, it was like 6 or 7 pictures which I prepared beforehand only. So that आप यहाँ से अच्छे से करिए. Make your own stories. Take the ideas from the class. जैसे डिस्कस होता है among yourself. Take the ideas from the class कि ओके ये जनरल लाइन है इस पिक्चर की, उस पर आप खुद एक्शंस ढूंढे, एक्शंस बनाए. You will remember it for a longer time. वेट ज़्यादा ना छोड़े. SRTs, do minimum 40 SRTs because you will have a margin of 10 to 15, 40 to 45 मिनिमम आपको करनी है. 30 इज द लोएस्ट नंबर ऑफ SRTs जो आपकी करेक्ट होनी चाहिए. सो टेक द मार्जिन ऑफ 10 to 15 SRTs. SD तो आप यू विल प्रिपेयर बिफोर हैंड ओनली. सो दिस वाज द साइकोलॉजी टेस्ट. GTO में जाएंगे, सेम बात, कीप योर काम, डोंट इंटरप्ट others, listen to others carefully. You will get time. जैसे ही 2-3 बंदों ने बोला, even if you think that the group is very dominating, 1 or 2 people you will face that are very dominating. उनकी सुनो,
उसको 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोलेगा, 5 मिनट। जैसे ही आपको मौका मिले उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा स्लो हो, गिव योर पॉइंट इंस्टेंटली, डोंट वेट, गिव योर पॉइंट इंस्टेंटली। हाँ, अगर आपको कट करता है तो डोंट बिहेव इन अ रूड मैनर, यू नो, फिनिश, लेट मी फिनिश फर्स्ट, और बी पोलाइट। जो GTO है दे विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग ऑफ यू। आपने कैसा कंटेंट बोला है, कितने टाइम में बोला है, हाउ वाज योर बिहेवियर टुवर्ड्स द ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल, GTO इज नॉट एन इंडिविजुअल टास्क, remember it. GTO will see how you are behaving with the group. First of all, group task है, ground task है, group में आप अगर अच्छे से maintain कर रहे हैं तो you will not have any problems. PGT, HGT, command task, I don't think anyone is better than sir to teach you. So उसकी तो आप टेंशन ना लें, but me तो लर्न दैट वेल। जो यहाँ आपको GTO टास्क सिखाए जाएंगे, तो उस आइडिया को जो है, उन आइडियाज़ को अप्लाई करने का सोचें। बाकी जो आप लोग GTO टास्क बना रखे हैं यहाँ पर, उसमें अप्लाई करने का सोचिए। हाँ, मैं ये अगर नहीं होगा, इफ GTO रिमूव्स रोप देन हाउ आई विल डू इट, ठीक है ना। तो वो तो सर आपको अच्छे से सिखाई देंगे। GTO उसके आगे लेक्चरेट, प्रिपेयर लेक्चरेट्स, तो सर ने आपको बता दिया होगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द लेक्चरेट। हाँ, सो प्रिपेयर द लेक्चरेट, स्पीक ऑन द टॉपिक इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक्स completely, you will have some ideas on 1 or 2 topics. Elaborate the material that you have on that topic. Be confident, speak well. That is the all that counts there. So lecture आप beforehand prepare करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Any advice for the conference? Conference, you have done almost everything that you have to do. So don't take pressures or anything. अगर आपको इंटरव्यू या फिर GTO में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं that you were not able to answer, prepare it. But conferences like you have done everything, they have made up your result. So be calm there also. Don't show that you are in a panic, you are in a distress, you know. So be calm. जो होगा वो तो देखा जाएगा, 5 मिनट बाद आपको रिजल्ट पता ही चल जाना है। सो इन द दैट ऑल्सो डोंट पैनिक। Anyone has any questions also can ask. Anyone have any questions? In general you have any questions, so ask. Yes. Since you have appeared for so many SSBs, you must have asked you that what went wrong in your last SSB. How did you answer this? Every interviewer have asked me this. The 20 SSB interviewer asked me this, that in the first 8 attempts, sir, I have like odd even. Screen out, Conference out, conference out. So he said that, Sparsh, I see that you are very inconsistent in your attempts. I said, sir, no sir, I am continuously 3 times screen out also. He laughed. So that was not the case. What did you answer? How did you handle this? The thing was, I said that I was very desperate, sir. Desperate to get in, desperate in the task. I told him that I was performing on a like lower side because of that. So this time I have prepared well, I have managed, I am keeping my calm that okay, whatever happens, I will give my best and not show this desperation. Right? So this was it. Sir, how is life at OTA Chennai? See, how you guys live here, you don't get like time to sleep, right? There also is the same. Will not. तो आपको 4-5 घंटे मिल भी जा रहे हैं अगर आपने काम कर लिया। You will not get time in the academy, even eat. You have next appointments, you have next engagements. ऐसे टाइम The same day rhythm also had qualified, right?
And before I present her the tie and the cup, I'll also request Sumanshi to share with us her secrets of success and what was her method of preparation, because I don't think she had the time to prepare. The only thing, whatever you learned here, you just put it into practice. So let's hear from you. One must be very interesting. Hello everyone. I was not having any time to prepare it. Friday को यहाँ पे classes खत्म हुई. I thought कि मैं 2 दिन study कर लूँगी. But Saturday I went home और मेरी documentation वगैरह कुछ भी complete नहीं थी, ना मेरी packing हो रखी थी. So मेरा पूरा time packing में चला गया, documents इधर उधर, print out, photo state, उन सब में चला गया. And on Sunday in the morning I went to Dehradun. और मुझे लगा कि मैं वहाँ पे जाके पढ़ लूँगी, लेकिन वहाँ जाके मैं घूमने चली गई और फिर पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा. एंड नेक्स्ट डे मेरा सुबह था ही, तो मैं रात को जल्दी भी सो गई फिर. और मैं रजिस्टर्स लेके गई थी, नोट्स प्रॉपर, लेकिन वहाँ पे कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पीपीडीटी और ओआईआर जो मैम ने कराए थे बहुत सफिशिएंट थे. उसमें से क्वेश्चंस आए थे. और पीपीडीटी वाज वेरी इजी. आई वाज अ फ्रेशर मे बी, तो मेरी पिक बहुत सिमिलर थी जो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की थी. सो मेरे को ज्यादा देर सोचना नहीं पड़ा, ऑन द स्पॉट टॉपिक बन गया एंड आई जस्ट फ्रेम्ड इट. मेन पार्ट वाज नरेशन, और जिसकी प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत अच्छे से हो गई थी. यहाँ आने से पहले मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नहीं बोल पाती थी चीजें. बट हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिस से बहुत सही फर्क पड़ा मुझे. एंड मैंने वहाँ पे OIR सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ूं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. मॉर्निंग में मैं फटाफट बस उठी एंड आई वेंट देयर. एंड जब मेरा ग्रुप जो था वो भी बहुत सही था, और पता नहीं कैसे तो हमारी कंक्लूजन करके स्टोरी भी बन गई है. एंड जब जैसे अनाउंसमेंट हुई तो 2 girls from our batch was also there. They were repeater, but they got screened out. So वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे थे, और उनको वहाँ पे स्क्रीन आउट देख के मुझे मेरे रिजल्ट की टेंशन हो गई कि वो लोग स्क्रीन आउट हो गए तो फिर मेरा क्या होगा. बट आई थिंक आई वाज चेस्ट नंबर 33 एट दैट टाइम. एंड जैसे वो अनाउंस हुआ, आई जस्ट क्राइड देयर कि वाओ, आई गॉट स्क्रीन्ड इन. फिर मैं कहा चलो अब देखते हैं आगे. लेक्चरेट का मुझे कुछ इतना वो नहीं था, क्योंकि मेरी यहाँ पे भी रिकॉर्ड आपको भी पता है सर. सो मैं वहाँ पे पूरे दिन खेलती रहती थी. हम लोग 1 बजे तक फ्री होते थे, और उसके बाद फिर हम लोग को 2 दिन आउटिंग मिली थी, तो मैं भी बाहर घूमने चली जाती थी. मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा देखा जाएगा अगले दिन क्या होगा. एंड लास्ट डे कॉन्फ्रेंस पे आई वाज सिटिंग आउटसाइड, और अंदर 15-20 मिनट डिस्कशन चलता रहा, और मेरे को बाहर बैठ के बहुत डर लगने लग गया कि वो लोग मुझसे बहुत मेरे लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे अंदर, कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग. क्योंकि मेरे से पहले जितने लोग गए थे सबका वो लोग 1 मिनट बैठते थे और फिर उनको अंदर बुला दिया जाता था, और मेरे बारे में 15-20 मिनट मुझे बाहर बिठाए रखा. तो उसके बाद व्हेन आई वेंट इन, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछा हाउ इज द अकोमोडेशन, एनी सजेशंस, एंड उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया वापस. तो फिर मेरे को टेंशन हो गई कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं. अब फिर उसके बाद जैसे अनाउंसमेंट हुई, आई वाज चेस्ट नंबर 16 देयर, एंड इट वाज After the screening, how was the psych test? Psych test was the TAT pictures were almost the same जो सर ने बताई थी. मैक्सिमम वर रेलिवेंट. जैसे बोट वाली फोटो थी, वो वाली आपने जो दिखाई थी एज इट इज नहीं थी, बट सिमिलर थी. सेम साइकिल वाली एक स्टोरी थी कि अ गर्ल इज गोइंग ऑन अ बाइसिकल, सो दैट वाज आल्सो सेम. एंड आल्सो अ टूर्नामेंट, badminton or table tennis, I don't remember that. This racket wali picture, that was same. 2-3 more pictures, I mean 6 pictures were almost same, and rest were similar. तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था. It was all simple. और WAT words were very similar. Daily life words थे, और जो सर ने प्रैक्टिस करवाई थी almost same थे. तो SRT I did 52 situations, और situations almost same थी. यहाँ पे SRT को क्या था, यहाँ पे 42. यहाँ पे क्या फीडबैक?
मेरे को हर बार इम्प्रूव करने का फीडबैक मिलता था। मेरे को मेन लेक्चरेट में था, क्योंकि लेक्चरेट में मैं यहाँ पे कभी 3 मिनट पूरे नहीं बोल पाती थी। मैं यहाँ पे हमेशा यहाँ पे बोलती चली गई, उन्होंने रोक दिया फिर कि चुप हो जाओ। GTO टास्क, हाँ, आपने लास्ट में हमें बताया था कि एयरफोर्स के जो होते हैं उसमें प्लैंक एंड बल्ली वाले जो होते हैं, हाँ, वो वहाँ पर थे। इन PGT ऐसा हुआ था कि मेरी कोई नहीं सुन रहा था। मैं बोल रही थी कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, और वो लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे कि ये गलत बता रही होगी। तो मैं उस दिन आके बहुत वो गई थी कि मेरी किसी ने नहीं सुनी या मेरे को नहीं मिलेंगे आगे टास्क वगैरह कुछ। बट नेक्स्ट डे कमांड टास्क में आई वाज कॉल्ड ऑन 2nd नंबर, और मुझे सबसे टफ टास्क मिला था। और मैंने एक सॉल्यूशन उसका कर दिया था, दूसरा मुझसे नहीं हो पा रहा था, बट आई वाज ट्राइंग इट। बट फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आयो के बाद मैंने सर को फोन किया, मैंने उनको बताया कि मुझसे नहीं हुआ। कहते कोई बात नहीं, तुमने एक कर दिया, बहुत था। फिर इंटरव्यू वाज सेम, आप लोग यहाँ पे जो प्रैक्टिस करेंगे तो द क्वेश्चन दे विल आस्क, इट वुड बी मच इजियर देयर। द होल इंटरव्यू वाज डिपेंडेड ऑन CIQ एंड जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हो, और मतलब और बेसिकली some news, national or international news. It was just a general interview to know you. और वो मेरा अराउंड 45 मिनट्स चला था, तो और बाकियों का 1-1.5 घंटा चला, तो मुझे लगा मेरे को वो लेना ही नहीं चाह रहे वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने मुझे जल्दी भेज दिया। बट इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना पढ़ के गई थी मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने का चांस मिला। मैं रजिस्टर्स लेके भी गई थी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कोई मौका नहीं मिला कि मैं उससे पढ़ूं भी। जो सर ने रूल्स यहाँ पे याद करवा दिए थे शायद वो सही थे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ने का मौका मिल पाया था। दैट GTO रूल्स तो वो रूल्स आप लोग यही याद कर लेना, दे वर सिंपल। और मुझे बहुत हेल्प करी थी उन रूल्स ने वहाँ पर, क्योंकि GTO टास्क में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही रूल्स थे, और शायद इसीलिए मुझे भी कमांड मुश्किल मिला था। बाकी यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो उसको गो थ्रू कर लेना, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इट वाज ऑल इजी, तुम लोग टेंशन मत लेना, सब इजीली हो जाएगा। Okay, right. So let's start this small ceremony of presenting our tie and the cup to student Rhythm. Firstly, Rhythm, congratulations on cracking the SLB in your very fast. She belongs to Mohali, and what is representing? So I've completed my Masters in Mathematics, MS in Maths. Oh my God, very scary. I was very scared of maths. Okay, and she done masters, and she was there for 69 batch, test number 1, and then she had her SLB last week, and she cracked the SLB from 4 FSB Varanasi on 10th May. That is just 2 days back, and she's here today on her way back home. Yet to go for the medical. Medical is on 15th. Back to Delhi for the medical. Yes, sir. So let's hear from her what has been her motivation, how just the first attempt, because I know there's so many of you who are struggling with attempts, how she managed to convince the assessors that she has it in her. Okay, so without wasting any more time, I'll quickly hand over the mic to her and ask her what should she study, what was her method of preparation, which resulted in her success in the very first attempt. Good afternoon, everyone. How is it going? Making notes and doing homework? Yes. So I also made all the notes, and sir was very particular about notes and everything, checking homework. So do that very precisely, make notes. So my strategy was for preparation. I revised all the notes, everything that sir made us write. You had data diaries, so that was very handy, and I used some quotes. I used to write some quotes in it, so I used that quote in lecture 8 and other GD topics also. So be very particular about it and just follow wholeheartedly. Okay, don't make any excuse. Okay, and
the notes are very important. The OLQs, sir will tell you OLQs and must have told you in the first lecture, right? So just learn them by heart. और बिल्कुल भी एक भी कोशिश वो छोड़नी नहीं है कि बाद में देख लेंगे या बाद में कर लेंगे. That is how I am able to complete it in first attempt. So I learned them by heart. So that should be the approach you all can follow. And freshers, don't take any chance. For freshers, it's a golden opportunity. So please avail it and all the best. How was your experience of Pega? The pictures were the same. I was very happy to see the picture. The mountain climbing pictures, it was in PPDT. So sir had made us write all the professions and how they were trained. You know, they sir tell us how the peak, the name of the peaks. Be very specific about learning those names. They come very handy. That will come to my secret. So just learn them. So just learn them for first for being screening it, okay? And also for TAT and bad practice also. Just learn everything that is being taught here. Just write everything and revise it wholeheartedly. How was the GTO experience? How was the GTO task? Yeah. For GTO task, the GTO rules sir will give you. So just learn them point by point. There are 21 rules. So you should learn them by heart. And you should, when you are present in that ground ना, सर की आवाज आती है कान में कि आपको याद नहीं है अभी तक rules नहीं याद. So when you learn it, so you can recall them there, and they are used there. और कुछ use नहीं होगा, सिर्फ यही जो rules हैं वो सब use होगी. Lecture topic मेरा था latest technology in Indian Air Force. So वर्मा सर के जो भी सर पढ़ा रहे क्लास में सब learn करो and be very attentive. All the weapons and everything, write it down and learn them. And it is very easy to start be there. And also I was telling about data diary. I wrote codes in them. So I started my lecture with a code. So it is very impressive. So to say things like these which are mentioned in the class also. So just remember them. Yes, so in interview, many of you may be having doubts that they ask you, have you taken coaching? So I said yes, I have taken coaching, and I said I have taken coaching from Amas. So they counter question that what have they taught you? So be very honest, whatever is being taught here. First of all, listen what is being taught here. So be very follow what is being taught here. What are the values that are being taught here? So I mentioned them, and my interview was very good. So also, How much time did it take to talk to you? About 1 hour or? yes, I guess more than 1 hour. 1 hour 10 minutes was my interview. So there were many questions, and all of them were taught here. Any question other than the CAQ? Yeah, there are many probing questions. They asked me which is the nearest Air Force station near my house. So be aware about your they will serve it. District profile is being made here. So be very particular. Don't miss out on anything don't take anything lightly. Everything is used somewhere. Something will be used in GD, something will be used in interview. So do everything. Don't miss out on anything. How was the conference? So conference से सबको डर लगता होगा इतने सारे assessors बैठे होते हैं. But conference, yes, all are in uniform, and you have to be very aware which assessor is talking to you. So be present there and listen to the question. And there were only 1 or 2 questions are being asked in the conference. So answer them very. I was asked about again my city only. That where do you belong from, and tell me 2 good things and 2 bad things about your city. So I answered it. What did you answer about Mohali? It's a good city. Yes, it is. What one? I am from Kharad, sir. It is near Mohali. So it is very small city. So I mentioned about Fateh Burj is there. So I mentioned about it. It is a war memorial. I mentioned about it, and I also newly a highway is constructed. So I mentioned about it. Also about things can be improved. I mentioned that there are many universities and colleges. New Chandigarh University is there near my city. So I mentioned more facilities can be provided for students. So this is how I answered there. Any questions? Like you had some questions?
you mentioned that you would say a quote in your lecture about technology in the Air Force. So what quote did you use for this? No, I actually started with, sir, make you read books also here. You have, so I read a quote from a book, Sapiens. So I started with what is the purpose of Indian Air Force. So it is for the good of humanity, right? So I mentioned the quote on Sapiens book that only humans, only sapiens are able to cooperate in larger bases on such large numbers. So, Basically, the so it solution is, somehow should be linked to your yes. So if you over a period of time don't know and you have changed your methodology. You can learn general quotes. It's not being very particular about it, and you can also. It is a famous personality only. Yuval Noah Harari is the author of that book. So you can mention those books. So these are authentic quotes then from the books also. You can learn them. Anybody has any questions? Or you thought, you gave a thought? Following the sequence of CIQ is very important. So you may fumble sometimes, and what was the next question? So I took 1 minute. I asked sir that sir, I can't remember the next question which was there, but I didn't ask him to repeat it. So you can wait for one. You can ask for him. Ask from him that sir, I want 1 minute. You can rethink. So only that's the time I I'm also a maths graduate, so I would like to know what kind of questions you face. We are fresher or repeater? Fresher. So they didn't ask me anything in particular in detail. When you've done masters in maths, how can you question you? You will answer everything. He'll question you on geography, something. He's not much aware about our subjects. So after completing your course from here until your SSB, so what was your daily schedule like? That I will tell you. But there is a we'll make a schedule. You remember last idea? Yes, sir will tell you everything. For those candidates who are going after 6 months, for those who are going after 1 month, everything will be told. Yeah, last year. How many days were left after your IMS training? And how you prepared at that time? How many days you had after the IMS I had only 2 weeks. I also had serious exam in between. So I had only 2 weeks. So I followed the routine that sir had told us, which will be told to you also. So follow it. Anybody has any questions? You're all ready to eat the mithai? वापस भी लानी पड़ेगी. Thank you so much, Rhythm, for your enlightening information about the SSB and the experience being the first time. And I'm very sure the kind of confidence you are displaying here, you must have displayed much more or similar confidence, and that's the reason they selected you. So now, as a remembrance, token of remembrance, please accept our Thai and the आवाज नहीं आ रही पंखे 2 मिनट के लिए बंद कर अभी एसीज को सर्विसिंग कराएंगे अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को आ रहा है तो आपको 2-4 दिन पंखों के साथ डील करना पड़ेगा तो अगले मैच के लिए तो एसी चलते चलेंगे बस अदरवाइज आवाज नहीं जाती पीछे तक ओके कैन यू हियर मी नाउ यस सर सो जय हिंद एवरीवन टुडे आई हैव विद मी अ टॉल बॉय Mantavya Sharma. I think he's taller than me and he is from NEMA 60 batch. He is from Jaipur, NCC cadet who went for NCC entry and cleared his SSB on 23rd December 2023 in his first attempt. So that's very incredible. That is a dream for everyone, but then of course those of you who work hard can achieve that dream. So Emas joins OTH Chennai on 28th March. He's already in the merit list is 31. So he joins on 28th March. He's already got his joining letter, and his name is there on the board at serial number 806. That board is not there. That board is under print. Okay. So 806. He remembers his serial number. Most of the Emas students do remember. So you should also remember your serial number once it reaches the board. But to reach the board, you have to work hard, sincerely. Okay. And before and he's also brought a lot of sweets for you guys.
एंड ये सब कर्जा आपके ऊपर 3-4 किलो का कर्जा आ चुका है इस बैच के ऊपर। तो आपने वैसे भेजना इंसिडेंटली 60 बैच से बहुत क्लियर, ऑलमोस्ट 20-25 स्टूडेंट्स have played from 60 बैच। So I hope that this batch also gives us, if not better, at least equal results. Yes, sir. Okay. So I'll first present the tie and the cup to Mantavya, and thereafter seek his advice to you guys how you should go about preparing. Because as the batch is coming to an end, whatever my personal interactions are, most of the questions are related to how we should prepare now, after we leave AMAS and up to the SLB. That is something which is now started bothering you. Earlier you are bothered about sleep, now you are bothered about how to prepare in the coming time. So we'll ask Mantavya also, he also had 1 month. And also don't worry, on the last or second last day, I'll give you some special tips how you should carry forward your daily routine. But before we do that, let me first felicitate Mantavya. How was your experience being a fresher at SSB, and how did you prepare? Like everybody is thinking how they should prepare for SSB. That was the first attempt, the golden attempt. So what was your line of preparation? How many are freshers here? तो भाई फ्रेशर अटेम्प्ट आपका गोल्डन चांस रहेगा, ऑब्वियसली सर ने बताया जो करेक्ट चीज़ है। और आपने जो यहाँ पे प्रिपेयर किया है वो मोर देन इनफ है। आप मतलब मैं गया वहाँ पे एज अ फ्रेशर, तो जो रिपीटर्स के पास जो कॉन्फिडेंस होता है उस कॉन्फिडेंस के साथ गया था एज अ फ्रेशर। अंदर जाकर मैं बाहर से सोचता था कि मेरे को बस स्क्रीन इन होना है, स्क्रीन इन हुए बाद मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि मैं देख लूंगा जो होगा अंदर, आई कैन डू वेल। तो जो हमारे रिपीटर्स जो ग्रुप था वो लोग तक मेरे साथ में आके हमारे से बात करते थे कि तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया है तुम्हारे को, और हम जीके वगैरह ये सब चीज़ें जो सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है हर चीज़ की, मिलिट्री नॉलेज वगैरह। तो वो चीज़ें वो कई बार हमारे से आके एज अ फ्रेशर मेरे से पूछते थे हमारे रिपीटर्स कि आपको इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस चीज़ का मिलिट्री के रिगार्डिंग इस चीज़ का जवाब दीजिए कि कौन सी कोर, कौन से डिव, कैसे कैसे स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें। तो आपकी नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है इसमें। और फ्रेशर अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आप लेके जाओगे तो लोग ऐसे कहते हैं ज़्यादातर कि अपना जो फ्रेशर इंटरव्यू होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड PIQ ओनली, योर PIQ ओनली। बट फॉर मी इट वाज लाइक he asked me my PIQ also, military knowledge also, national, international news, everything he asked me. Everything he asked me. So watch out. And sir, national news, and some cases they have even asked, tell me news per continent, continent-wise news. So you should prepare for it. Yes sir. So in PIQ sir, he grilled me very much on friends and family part. He asked me about the examples of the characters of my friends and everything. Like say, if I have given some qualities of my friend, we both possess together. He asked some situation, give me some situation you both have shown the characters and the qualities all together. तो सर वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं उस टाइम पे। तो सर उस टाइम पे आपका नॉलेज कहाँ आएगा आपके, जैसे मैं उस टाइम पे बैठा था इंटरव्यू में तो मेरा एकदम से मोरल डाउन हो गया ऐसे क्वेश्चंस के बाद में कि अपना इंटरव्यू बिगड़ गया, ऐसा सोचा मैंने। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कॉन्फिडेंस हाई रखते हैं सर ऐसा। फिर वो जैसे ही मिलिट्री नॉलेज पे आए तो हमारे को मिलिट्री नॉलेज इतना अच्छा करवा रखा था, जीके इतना अच्छा करवा रखा था। फिर उसके बाद में आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड हुए हैं करंट अफेयर्स और काफ़ी बुकलेट दी होगी सर ने, उसको थोड़ा पढ़ लेना, मिसाइल्स वगैरह के बारे में, गन्स वगैरह के बारे में, राइफल्स वगैरह के बारे में। मैं NCC एंट्री था तो हमसे तो एक्सपेक्ट करते ही हैं जो NCC वाले लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप रिटर्न से भी जा रहे हो, आपके पास अगर NCC आपने करी है तो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इतना तो आना चाहिए मिलिट्री के बारे में एटलीस्ट। बाकी जैसे सर आपको मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में बताया था सर, मिलिट्री नॉलेज में उतना डीप चले गए थे कि मेरे से रिबन्स तक पूछे थे कि हम उन पे चले गए थे। ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत सर, सबने नाम सुना होगा उनका। तो मैंने उनको बोला था शौर्य चक्र अवार्डी, उन्होंने पूछा था, मैंने एक बताए थे मेरे नोन है उनके लिए बताया था, तो उन्होंने कहा टेल मी अनदर वन, तो मैंने सौरभ सर का नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम उनकी सारी डेकोरेशन मुझे सीनियरिटी वाइज बताओ। तो उनकी सारी डेकोरेशन मैंने उनको सीनियरिटी वाइज बताई। फिर वो AVSM VSM पे आ गए, कहते VSM किसको मिलता है, AVSM किसको मिलता है, PVSM किसको मिलता है, फर्क क्या है इन चीज़ों के बारे में। फिर भूल जाएंगे
हाँ सर एग्जैक्टली। और सर जैसे हमने VSM वगैरह सुनते तो हमने मैक्सिमम सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी देखी वो चीज़ आगे लगी। तो उन्होंने मेरे से एक सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा कि तो तुम्हें क्या लगता है VSM से सीनियर ऑफिसर्स को मिलता है? तो मैंने डायरेक्टली कह दिया नहीं, क्योंकि सर एक हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारा सूबेदार जो है हमारे नीरज चोपड़ा जी, उनके पास में भी है विशेष सेवा मेडल। और उन्होंने पूछा कि और एग्जाम्पल दो, तो एक मेजर करके हैं हमारे सुरेंद्र पूनिया सर, इफ यू नो गाइस, वो है पैरामेडिक हैं, उनका भी एग्जाम्पल लिया मैंने कि उनके पास भी VSM है। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपको सीनियर ऑफिसर्स को मिलेगा वो मेडल। तो सर वो कहीं ना कहीं मेरी वो वाली चीज़ मेरे को उधर से इंटरव्यू से निकाल के ले गई, जो मेरा थोड़ा बहुत दिल वगैरह हुआ था। तो फिर सर मैंने बैरक में जाके पूछा सर GTO, तो सर आप जितना सर डेटा डायरी मेरे पास में थी, डेटा डायरी की वजह से ही, जैसे सर GD की बात करते हैं हम, तो डेटा डायरी में हम बैठे हैं, हमारा पूरा ग्रुप बैठा है, एवरीवन विल स्पीक, बस आपकी सिर्फ जब सुनेंगे जब आप डेटा और एग्जांपल दोगे जो सर बताते हैं। तो सर जैसे ही मैं बोलता था, अगर कोई डेटा के साथ एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ तो सब चुपचाप सुनने लग जाते थे। और सर डेटा और आप एग्जांपल दोगे तो ऑब्वियसली आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा बार बार कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर 17, आई एग्री विद चेस्ट नंबर 17 ऐसे सर। तो उस वजह से सर GD का इम्पैक्ट आपका काफी अच्छा खासा हो जाता है। सिर्फ थ्योरी तो सर कोई भी बोल सकता है वहाँ पे जाके, कोई भी बना देगा सर, पर जब आप नंबर्स दोगे तो एग्जांपल्स दोगे तो लोग आपकी सुनेंगे। ऐसा ही आपका डेटा डायरी आपको पूरी हेल्प कर देगी। और मेरा जैसे आफ्टर द AMAS आई गॉट 1 month टू प्रिपेयर। सर रेफरेंस आप सर हमको यहाँ पे सर आपकी जो वॉल्यूम 2 वाली बुक है वो हमारे को एट द एंड ऑप्शन मिल गया था परचेज करने का। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराई है वो वैसा ही है उसके अंदर, पर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का और सेट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्टोरीज, आइडियाज, हर तरीके की चीज आपको वॉल्यूम 2 की बुक में मिल जाएगी। तो वॉल्यूम 2 शीट भी हम देते हैं, वो भी तुमने कंप्लीट हो गया वो सब सर सब कंप्लीट कराना है हमने। ये भी हमारा 4 वीक वाला कोर्स था, तो हमारे को सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और करनी होगी 4th वीक में। That was a very big advantage these guys got. 4th week. So initially we had a 4th week option, right? So he was one of those. तो हमने कहा जो 4th week आना चाहता है तो उसमें तकरीबन क्लास में से 25 या 30 बच्चे रुके थे 4th week के लिए। उसके लिए एडिशनल सेट्स हमने प्रैक्टिस कराए थे और काफ़ी बेनिफिट था। अभी फिर कभी टाइम मिलेगा तो एक 4th week का भी हम चलाएंगे। सर प्रिपरेशन शुड बी लाइक सर आप अपनी प्रिपरेशन पे एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप अगर SSB के अंदर जा रहे हो तो एवरीथिंग एवरी स्टेप ऑफ यू शुड बी प्लान्ड। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लक बेसिस पे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो गया तो इट वाज माय लक, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक स्टेप आप ले रहे हो, हर एक अगर आप GD के अंदर बोल भी रहे हो तो अच्छा खासा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, स्पेशली इंटरव्यू में बोलना होता है। आप ऐसे नहीं आपने कुछ उसने मिसाइल के नाम पूछे इंटरव्यू अफसर ने, आपने बोल दिया कि पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स के नाम ले दिए, पर आपको उसके आगे पता ही नहीं कि पृथ्वी के कितने वेरिएंट्स हैं, अग्नि के कितने वेरिएंट्स हैं, उसका नेवी वेरिएंट को क्या कहते हैं, कहाँ से चालू हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए तभी आप बोलो। या फिर आप फिर उस चीज़ पे लेके मत जाओ इंटरव्यूअर को, क्योंकि फिर वो आपके लिए नेगेटिव जाएगी। इसलिए तो जो आप करो हर एक चीज़ प्लान होनी चाहिए, हर एक स्टेप आपका प्लान होना चाहिए। ये चीज़ आपकी GOR वगैरह हर एक चीज़ में बहुत काम देंगी। अगर आप हर चीज़ प्लान करके चलोगे आपकी टीम के साथ में, आप अगर आगे भी चल रहे हो तो आप हर एक स्टेप अपना कि हाँ कितना जोर से हमारे को वो लगाना है, अपना वॉर जो बनाते हैं हमारा सर, मैं सर हाटपुर वैसा राजरीफ वाला सर राजरीफ जाना तो हम सर राजा रामचंद्र की जय लगा दिया था। हम सर जोर से राजा रामचंद्र की जय चिल्ला रहे हैं सर। अजीब से सर ब्लैकआउट हो रहे हैं पर कोई बात नहीं, आगे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं। सर ऐसा था कि थोड़ी देर चिल्लाना है, थोड़ी देर करना है, पर पूरा जोर लगा के करना है। कहीं पे भी आपको करे बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा और कर लेता तो ये हो जाता थोड़ा सा और, क्योंकि 0 टाइम पे आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे फिर भी एक चांस और मिल जाएगा, आपको एक साइड और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपकी स्टोरी का एक साइड और प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टोरी में भर के एक्शन डालो, भर के चीज़ें डालो कि उसने उनने जो भी आपका हीरो है उसको एम्पावर करो, कि उसके एक्शन अच्छे लिखो, एम एक डिसाइड कर दो, उसको अचीव करने के लिए खूब सारे अच्छे एक्शन डालो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल बस गया करा और हो गया, तो वो आपकी थिंकिंग दिखाएगा अच्छी बड़ी, वैसा करना। Anybody wants to ask any questions? एक हफ्ते बाद एकेडमी में होगा, फिर नहीं आ सकते। No questions? Thank you so much, Mantavir, coming all the way, motivating them. 3 candidates recommended today from 1 SLB, 24 SLB for NCC special entry. One from
AMAS 54, one from 60, and one from 52 batch. Right? And we have with us today one of our stars, Chaitanya, was recommended twice. ये रहा 757. इतनी सारी मिठाई, ये तो मोटे हो जाए खा खा के, रख दे। अब तू ले आया तो हम तेरे को निराश नहीं करेंगे। आज ना इसका कॉल आया रतन ठाकुर, राजन ठाकुर का, हाँ। एंड ही सेड के सर एमासियंस आर स्टैंडिंग आउट। मेरे को आईओ ने पूछा कहाँ से कोचिंग लिया, ही सेड सर एमास से लिया। 4th and the last attempt, एज वॉज गेटिंग ओवर, ओके। ही सेड सर मैंने, उसके बाद बोला उसने सर बहुत पूछा मेरे को एमास के बारे में, ये कैसे किया वो कैसे किया, एंड आई टोल्ड एवरीथिंग। So I will tell you how to say this, how to say that you have taken coaching, and you don't hide it. Please don't hide, don't have to escape, say कि नहीं बताना नहीं। वो जमाना चला गया जब हम बोलते थे कि मत बताओ। आज हम बोलते हैं अगर पूछना है तो बताओ, बिकॉज उसमें लगता है कि हाँ आपने तैयारी की, मेहनत की अपनी। ओके, अगर आप बोलते हो मैंने अपने आप से किया तो बोलेगा अच्छा तू 4 बार जा चुका है, पास हुआ नहीं, फिर भी तूने कुछ नहीं किया, कोशिश नहीं की, है ना। जैसे मैंने आप लोगों कईयों को पूछा। सो आजकल ऐसा नहीं है, आपको भी पूरा हक है तैयारी करने का। अब बताओ सर, अपने आप से भी तैयारी किया मैंने, और मैंने कोचिंग भी लिया। कोचिंग का एक बेटर नाम है प्रोफेशनल गाइडेंस, राइट। सो वो भी लिया मैंने। तो ऐसे आपने आंसर देना है। एंड ही सेड सर मैंने बताया, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या थोड़ा सा उनके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो गए, बट फिर इसने आंसर किए तो पास भी हो गए, right? So either way, it is good for you. Shall I start? Here is the smart boy. Come, Chaitanya. माइक को हैंडल करता हूँ। ये यहाँ से कर दो। ये भी साथ में पकड़ो, दोनों के साथ पकड़ो। Right, so gentlemen, today we have with us one of our students and star, Chaitanya Patil. He hails from Maharashtra, Jalgaon, and he's a technical graduate, and he was student of AMAS, which batch? 57 batch. And after that, he is qualified SSB twice, once for TGC, in which he is AIR 3, and after that for SSC Tech. So TGC qualified on 5th August, and SSC Tech on 22nd October. Let's welcome him with a big hand of applause. And he has also got with sharing with you sweets of success. Lot of sweets. I think you are going to get bloated, but these is all burden on you. Okay, as many sweets you eat, work that much hard, come back, get selected, come back and redistribute the sweets. Okay, so that is the karza which selected candidates of AMAS are putting on you, so that you also work hard every minute, every hour what you spend here. So before we hear his story of hard work and grit, how he did it, because Chaitanya also did in his 4th and 5th attempt, very qualified. Okay, so he's also had a little tough phase, but he worked hard and he converted it to a phase of success. So before I give the mic to him, I would like to present to him the AMAS tie and the AMAS cup, and then I will ask him what was his method of preparation. So, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। देखो मैं हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश सबको आती है, स्पेशली फॉर जो बंदे पीछे बैठे उनके लिए, क्योंकि मैं भी तुम में से ही था। मैं ऐसा नहीं कि आगे बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब करते थे, लेकिन जब करनी होती है तब, जब दोस्तों के साथ है तब पढ़ाई भी करो, और जब पढ़ाई का टाइम नहीं है तब मस्ती भी करो। और पहले से अगर देखा जाए तो मैंने नियर अबाउट जब टेक्निकल था तो मैंने IOCL, फिर बाद में BPCL, ये सब जो एग्जाम्स होते वो दिए थे। ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D सब, एक में भी पास नहीं हुआ हूँ मैं,
नियर अबाउट 17-18 एग्जाम्स दिए हैं मैंने एसएसबी के अलावा। फिर बाद में मैं गया एक ऑनलाइन कोर्स करने एसएसबी के, वही स्टार्टिंग में जैसे सब करते हैं यूट्यूब पे देखो, फिर ABCS क्लासेस होते हैं तो उनको देखो, फिर उनके कोर्सेज ज्वाइन करो, फिर तब मालूम पड़ता है कि ये एसएसबी ऐसे नहीं चलती है। एसएसबी के लिए पर्सनैलिटी चाहिए जो डेवलप होती है खुद के इस पे से। सर गाइड करते हैं, सर आर टीचिंग यू इन द वे विच इज बीन टॉट टू एवरी सिंगल एस्पिरेंट। यहाँ पे ACC एंट्री वाले, NDA वाले, CDS TGC टेक एंट्री वाले। सो यू नीड टू पुट योर ओन एफर्ट्स। कोचिंग आने के पहले मैंने नियर अबाउट 2,500-3,000 हज़ार इमेजेस कर ली थी टैट की, वैट SRT सब। सो इट्स नॉट दैट यू आर कमिंग हियर कि सर ने स्टोरी दे दी, सर ने इमेजेस दे दी, ये कर लिया। खुद प्रैक्टिस करो घर जाके, एसएसबी में सीधे मत चले जाना। और मेनली जीके, तो हमारे इसमें ऐसा हो गया था वर्मा सराय क्लास में और हमारा बैच थोड़ा ज़्यादा ही डिसिप्लिन था, तो वर्मा सर चलती क्लास से चले गए थे। अच्छा, वो वेरी इंटरेस्टिंग। या सर, और मैं बैच का स्लीपिंग बॉय था। स्लीपिंग बॉय 57 अफसाना मैम ने नाम दिया था, क्योंकि मुझे सर ने 2-3 बार उठाया चलती क्लास में सोते सोते, बाकी सरों ने भी उठाया है। तो देखो यही है, रूम पे जाते हो होमवर्क टाइम पे करो, क्योंकि होमवर्क ही है जो इसमें पूछते हैं। नॉर्मल जीके रहेगा, डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स रहेगी, फिर बाद में जो GTO के रूल्स सर बताएंगे वो, और फिर इनिशियली मेन पार्ट होता है इंटरव्यू जीके। तो जीके की क्लास रहेगी ना, तो उसमें सोना मत, याद रख लो ये जीके की क्लास धीरे धीरे तुम्हारी स्टार्ट होगी। तो बैच स्टार्ट हुआ है, 20-25 दिन चले गए, तुम्हें रात में 2:30 बजे सर का मैसेज आएगा कि मुझे PPT की इमेज चाहिए, फिर रात को 3 बजे तुम्हारे GD टॉपिक्स चल रहे हैं, तो अब तुम्हारी नींद होने वाली है 2 से 3 घंटे की। फिर बाद में यहाँ पे दिन भर क्लासेस, तो प्रिपेयर रहो इसके लिए कि ये करोगे तो ये आगे जाके कुछ मिलने वाला है, नहीं तो फिर वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। तो आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, फोकस ऑन योर सेल्फ and your preparation, because this is only one thing which is going to make you recommended. Whether it is once, twice or thrice, whatever the things are. Experience when you went for the stage 1 कैसा था, कितने लोग आए, कैसे हैंडल किया, उसके बाद साइक कैसे हैंडल किया? साइक तो सर इनिशियली स्टेज 1 जैसे सर ने बताया था कि इमेज आएगी, 2 जैसे ही फॉर्मेट होता है अपना स्टोरी लिखने का, इसमें डिटेल्स स्टोरी का इंट्रोडक्शन जैसे सर ने बताया। फिश मार्केट था कि सर? हाँ सर, दोनों टाइम से फिश मार्केट हुआ। तो इनिशियली जब फिश मार्केट होता है तो खुद को काम एंड कंपोज रखो, जितना काम रख सको उतना। बोलते समय भीड़ हो रही है, हर कोई बोल रहा है, तो बार बार मत बोलो, जितने बार बोलो उतने बार, जैसे सर बताते हैं गतिविधि कि एक ही चीज़ बोलो लेकिन पॉइंट से बोलो, दैट यस वी कैन डू दैट। और जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर सामने वाले ने बोला, कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, देयर इज ए इमेज, उसमें गार्डन था, तो कोई बोल रहा है कि ये ओल्ड की गार्डन में 2 आदमी, तो ये गार्डन का पोर्शन है, और तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे दो कैरेक्टर थे, थोड़े बूढ़े थे, तो बता दो इट्स एन ओल्ड एज पोर्शन ऑफ द गार्डन वेयर ओल्ड एज पीपल आर कमिंग। सो इन PPT GD ट्राई टू इम्प्रोवाइज द पॉइंट्स, और इम्प्रोवाइज करोगे, पॉइंट्स याद रहेंगे, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन के हाथ उठाओगे कि आई वांट टू गिव द फाइनल नरेशन, तो तुम्हारे पॉइंट्स याद रहेंगे, तुम्हारी स्टोरी फंबल होगी नहीं। फिर हमने जब GTO सर पूछते ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, तो ग्रुप में से कोई भी तुम्हें अपोज नहीं कर पाएगा। और ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि ग्रुप में कोई अपोज भी ना करे, नहीं तो तुमने नरेशन दी थी और कोई ग्रुप में कोई बोल रहा है नो सर ये तो पॉइंट था ही नहीं, तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान रखनी है। फिर स्क्रीनिंग होने के बाद साइक, तो जैसे सर ने बताया वैसे ही साइक में GK यूटिलाइज करो जैसे यूज हो सकता है, जैसे स्कीम्स होती है। फिर बाद में इंट्रोडक्शन प्रिसाइज रखना, जैसे सर बताएंगे, अब तुम्हें धीरे धीरे सब चीज़ें मालूम पड़ेगी धीरे धीरे, तो जैसे सर बता रहे वैसे ही करो। सर पहले जब मेरा जालंधर में था तो वहाँ पे 8 इमेजेस रिपीट हुई थी, और जब सेकंड टाइम बैंगलोर गया तो वहाँ पे 11 के 11। हाँ सर, सेम सर, सारी के सारी यहाँ से आई थी। नहीं, हमने नहीं भेजी, अपने आप आई। हाँ वो तो कोइंसिडेंस, सब प्रिपरेशन करते करते पिक्चर्स कराएंगे प्रैक्टिस, तो उनमें से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कईयों में 2-3 आती हैं, कईयों में ज़्यादा आ जाती हैं, तो जितनी हमारे पास है वो प्रैक्टिस कराते रहे। ठीक है सर। GTO ग्राउंड में कैसा हुआ? GTO ग्राउंड सर, मैं ऐसा था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं था जब जालंधर में हुआ था तब, तो बिना सबऑर्डिनेट किसी ने बुलाया नहीं। PGT वगैरह, PGT HGT, तो PGT HGT तो सर सेम जैसा है वैसे ही रूल्स फॉलो करो सर के। और जैसे ही सर ने बताया कि ग्रुप को कैसे लेके चलना है, ग्रुप में पार्ट कैसे, सीन ऐसा था, TGC एंट्री सारे जो होते हैं वो 25, 27, 26 एज के होते हैं, मैं था 21 का, और मैं 5 फुट 5 इंच, सारे 6-6 फुट के। तो ऐसा है, घुसने कोई देता नहीं है, तो अंदर जाने के लिए मैंने इनिशियली बोल दिया दैट आई थिंक समवन लाइट वेट शुड गो इनसाइड, तो लाइट वेट मैं अकेला दिख गया, मुझे भेज दिया। तो टैक्टिस खुद प्रिपेयर कर लेना उस मोमेंट पे, क्योंकि तुम्हें कोई खुद होके बोलेगा नहीं कि भाई अंदर चले जा। सिंपल बात है, जैसा मोमेंट मिला प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो और खेल जाओ,
सेम हुआ मेरा कमांड टास्क में। जीटीओ सर ने बुलाया, उन्होंने कहा भाई यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, नो वन कॉल्ड यू आउट, आई थिंक यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स द रीजन नो वन इज कॉलिंग यू आउट। उन्होंने 5 मिनट मुझे इसी बात पे बोला कि तू आर्मी ज्वाइन मत कर, यू शुडंट ज्वाइन आर्मी, यू आर नॉट फ्रेंडली, यू आर द 8th guy बट नो वन कॉल्ड यू आउट, you are also short heighted, you don't have that physical appearance, you are into army, this organization requests people who are good physically built। उन्होंने 5 मिनट यही बोला है कि तू आर्मी ज्वाइन ही मत कर। एट देन व्हेन जब सर का हो गया बोल के, तो मैंने बोला सर, और कोइंसिडेंसली जो सर थे उनकी हाइट भी मेरी इतनी सिमिलर है, ठीक है, जो जीटीओ सर है जालंधर में। तो जब सर ने सब बोल दिया तो मैंने भी बोला सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू आउट, सर यू कैन आस्क एनी 39 of this, they would let you know who Patil is। And sir, correcting your about your thoughts on height, sir, there's an inspiration in front of me who is taking my GTO, and I think he is also 5'5" or 5'7", and sir, I don't think that my height will be an issue over here। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रखो, ये बहुत काम आने वाला है। एक तो ये, फिर आयो में ऐसा हुआ कि मेरा चेस्ट नंबर 40 था, मेरा सबसे लास्ट शाम को 6:30 बजे, मुझे 6:15 बजे ग्राउंड्समैन क्या बुलाते, बोलते तेरा आयो होगा कॉन्फ्रेंस के 1 घंटा पहले लास्ट, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं भी चलो ठीक है, फिर मैंने भी नॉर्मल ड्रेसअप में आ गया जैसा अपना होता है एसएसबी का। फिर बाद में आते बोलते नहीं तू हो जा, सर बुला रहे तुझे। ड्रेसअप हुए, बाहर बैठे 6:30 बजे, आधा 1 घंटा वहाँ पे बिठाया उन्होंने, फिर अंदर बोला। तो ऐसा हुआ था कि चेस्ट नंबर 37 जो था ना, अब उससे लगा कि वो कॉन्फिडेंट है। तो जब लास्ट में पूछते ना कि डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, तो उसने पूछ ला, ऐसी बात है कि जो आयो है जालंधर में वो पैरा एसएफ के, तो बंदे ने पूछ लिया सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कॉम्बैट एक्सपीरियंस इन पैरा एसएफ। तो सर ने बोला कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते, रिगार्डिंग एसएसबी पूछे, तो बोलता नो सर दिस इज ओनली माय क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आंसर यू कैन टेल इट। अब बंदे को लगा ये उसका कॉन्फिडेंस है, ये गलती तुम में से कोई भी मत करना, ठीक है। तो वो बैरक में आके बता रहा था, मैंने सुन लिया था, मुझे खड़े बैठने भी नहीं दिया, खड़े खड़े पूछते सो पाटिल डू यू ऑल्सो थिंक दैट आई एम फ्रॉम पैरा। मैंने तो सुना था, तो मैंने बोला नो सर आई डोंट थिंक। बोलते व्हाई, यू आर समथिंग स्पेशल, you came from somewhere else, all these things all these people are saying, you don't know, you are not listening to them। and also I don't believe in all the dreamers until I am seeing you in that kind of insignia, I won't believe that। तो थे ओके नाउ यू मे सिट। तो ऐसा मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है। इंटरव्यू चला सिर्फ 20 मिनट। पहला अपना सीए की हुआ, फिर उन्होंने पूछा जालंधर का सर, वो तो सर इससे भी वो 25 मिनट। तो फिर सर ने बिठाया, सर ने पहला सीआईक्यू लिया, फिर बोलते कोचिंग ली है, मैंने बोला यस सर, बोलते अमास। तो फिर मैं ऐसा, सर भी ऐसे, फिर मैं ऐसा, फिर अचानक से उनकी हंसी बंद हो गई। फिर उन्होंने बोला नाउ देयर आर सम माइनर चेंजेस इनटू योर क्वेश्चंस। और फिर मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। फिर उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर बैड क्वालिटीज, व्हाट योर फ्रेंड थिंक्स इन, and also explain your friends and what they are doing, and also tell me how do you consider them as your best friend। तो क्वेश्चन सिंपल था, अगर थोड़ा काम वे में देखो ना तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए उस पॉइंट पे वो प्रेशर डालते रहते हैं आपके ऊपर। मेरा इंटरव्यू चला 20-1 मिनट, 6-7 क्वेश्चन पूछे उन्होंने जीटीओ, फिर बाद में थोड़ा एसएसबी क्या होता है, फिर प्रीवियस अटेम्प्ट्स, फिर एट द एंड उन्होंने पूछा डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, एंड आई वाज लाइक सर 7 ही क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन के बाद कौन पूछता है ये सवाल, तो मैं तो नो सर। फिर बोलते हैं सी पाटिल इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल देयर आर 5 थिंग्स, फर्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, जीके, पेशेंस, परसिवरेंस एंड कॉन्फिडेंस। यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस यू मे लीव। ये बोल के निकाला है मुझे इंटरव्यू से शाम को 7 बजे। तो मैं ये बोल के निकला, सर को कॉल किया, सर बोल रहे कोई टेंशन ना ले, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल काम रहे। कॉन्फ्रेंस में गया, कॉन्फ्रेंस का डिस्कशन टाइम 15 मिनट, बाहर बिठा के रखा है 15-20 मिनट, फिर बुला अंदर। फिर अब कॉन्फ्रेंस में मेरा बाकी इंटरव्यू कंटिन्यू हो रहा है कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, फिर पढ़ाई कहाँ से की है, ये क्या वो क्या। फिर अचानक से एक सर बोले पाटिल व्हाई डू यू थिंक यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, यानी जो पॉइंट उन्होंने छोड़ा था ना आयो में, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर तुम्हारे आयो में ऐसा कुछ हुआ या तुम्हें लग रहा है कि ये तो कुछ बाहर का है, तो काम एंड कंपोज रहो, जितना काम रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जीटीओ आयो कुछ भी होने दो। तो जब मुझे वो पूछे दैट पाटिल व्हाई डू यू थिंक यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, तो मैंने बोला सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू आउट इन दिस, इट्स नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट नॉलेज। If you are forcing me to speak on some particular topic, even if I'm not knowing that, so sir, at that point, I may get blunt or speak something which is not regarding the topic. And sir, as you know, knowledge passes from person to person. And sir, I don't want to make you and make myself a part of that circle who is conveying false knowledge. तो फिर अचानक से एक मैडम ने बोला
कि इफ द पर्सन इन द फ्रंट ऑफ यू इज नॉलेजेबल, तो मैंने बोला मैडम देन इन दैट केस सर ही इज गोइंग टू करेक्ट मी आउट, सो सर इन दैट केस आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बोलते ओके ओके ओके। वापस थोड़ा इंटरव्यू चला, फिर अचानक बोलते वो नॉर्मल क्वेश्चन होता है हाउ इज द स्टे, ये सब तब पूछा तो मैंने बोला सर गुड। बोलते नो नो वी आर आस्किंग यू आउट ऑफ इट, इट इज अ न्यूज एसएसबी ओवर हियर, वी आर नॉट जजिंग यू ऑन दिस टॉपिक, बी जस्ट फ्री, जस्ट टेल व्हाट यू आर थिंकिंग। मैंने बोला नो सर ऑल वाज गुड। तो नो पाटिल जस्ट थिंक इट टेक 5 minutes। फिर उन्होंने टाइम दिया कि सोचो गलतियां निकालो। फिर मुझे तो पता था कि उन्होंने कितना भी बोला गलती करनी नहीं है। मैंने बोला सर आई हेल फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, वी हैव टू सी फॉर एवरी सिंगल penny which you are spending. Sir, if we compare railway dormitories, they are giving us a single bed and a common washroom for 350 rupees for 12 hours. Sir, if you are looking for a security, for a accommodation, also you are looking for our gadgets which you have been giving to you for security purposes. And sir, all these things are for free. And sir, as you asked, my chicken curry was favorite and it was similar to my mother how she makes. So I don't think that this could be anything way much more better than that. तो फिर ये सुन के पूरा बोर्ड हंसने लगा और फिर बोला ओके पाटिल नाउ यू मे लीव। और मुझे सब पाटिल ही बोल रहे, चैतन्य कोई नहीं बोल रहा, ना ही आयो, ना ही मतलब ना जीटीओ सर बोल रहे, कोई भी नहीं, कॉन्फ्रेंस में पाटिल पाटिल बोल रहे। तो ये बोल के निकाला, फिर बाहर आए, फिर वही कि भाई तेरा तो बहुत लंबा चला है। सर हाँ सर ये था, रिपोर्टिंग थी 138 की, उसमें से नियर अबाउट 17-18 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे, अभी 6-6 7-7 बार। और 3 बंदे आए थे वो INA से आए थे, 3 कैडेट थे, तो उसमें से हम 7 हुए, उसमें से 4 थे प्रीवियसली रिकमेंडेड। वो बाद में हुआ था। फिर हम 3 जो फ्रेशर थे उनमें से एक मैं था और बाकी 2 थे, और जो 4 रिकमेंडेड हुए थे उनमें से सिर्फ एक ही था नेवल कैडेट। सो इवन इफ यू आर अ कैडेट देयर इज नॉट चांसेस दैट यू आर गेटिंग रिकमेंडेड अगेन। सो प्रीवियस रिकमेंडेशन लेके भी प्रिपेयर करके जाओ, स्पेशली जो ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए। उन्हें होता है कि मैं तो हो गया, अब मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं भाई, जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने देखे बंदे स्क्रीन आउट होते हुए। बैंगलोर में भी सेम सीन, एक प्रीवियस रिकमेंडेड स्क्रीन आउट हो गया था। फिर वहाँ पे बैंगलोर का इंटरव्यू कमांडेंट सर ने लिया था, वो मेजर जनरल थे, सेम कोचिंग कहाँ से लिए, अमास ओके नाउ देयर आर माइनर चेंजेस। फिर जीके पूछा उन्होंने, तो देखो जीके का एक सीन है, हर किसी को हर एक चीज पता नहीं होती है। देयर इज नॉट अ सिंगल गाय ऑन दिस अर्थ हु माइट बी नोइंग एवरी सिंगल थिंग। तो ये देखो इनिशियली मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछे, मुझे आए नहीं, मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो, आई एम अनेबल टू रिमेंबर एट दिस मोमेंट। तो उन्होंने गुस्से में आके बोल दिया यू आर रिकमेंडेड गाय, यू आर नॉट नोइंग दिस थिंग, हाउ डिड यू गॉट रिकमेंडेड एंड फॉर टेक एंट्रीज। एंड आई लाइक सर I know few things and I am confident about it, but when I'm not knowing some things and when I'm not that much confident, so sir I don't think वही same line, so as you know knowledge passes from person to person। उन्होंने बोला ओके 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 ओके। फिर और क्वेश्चंस पूछे, फिर बाद में उन्होंने बोला ओके पाटिल यू, और वहाँ पे भी पाटिल यू में लीव। मैं बोला ओके सर। फिर सेम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ज़्यादा लंबी चली नहीं थी, नॉर्मल थी, मतलब चेस्ट नंबर बैंगलोर में चेस्ट नंबर 20 बाहर निकला, तुरंत बेल बज के मुझे बुलाया। मैं सोच रहा हूँ नाम तो डिस्कस कर ले, कुछ तो डिस्कशन टाइम कुछ था ही नहीं। फिर वही हाउ स्टे हाउस बैंगलोर, ओके यू मे लीव। और एक और बात बताता हूँ, मर्फीज लॉ पता है सबको? वो मेरे साथ जलंधर में हुआ है। स्पोर्ट शूज ब्लैक कलर के, क्योंकि व्हाइट कलर के मुझे मिले नहीं थे, मैं यहाँ से भी ज़्यादा था, आउट ऑफ स्टॉक थे, मुझे कहीं भी मिले नहीं थे। सेकेंडली कमांड टास्क में मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बीइंग अ सबऑर्डिनेट। थर्ड हाइट में सबसे छोटा पूरी बैच में। फोर्थ सबसे यंगेस्ट 21 एज, बाकी सारे 23, 24, 25। और एक और बात, कॉन्फ्रेंस सबसे लंबी चली, तब भी जो 7 बंदे रिकमेंडेड थे ना, उनमें से मैं अकेला मेरिट हूँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई बोल रहा है कि कॉन्फ्रेंस लंबी चल रही तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सब उनके साथ हुआ, तुम्हारे साथ होगा नहीं होगा तुम्हें क्या पता। सो बी कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपेरेशन। सर गाइड करेंगे लेकिन चलना तुम्हें खुद को है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सर करवा ही लेंगे, ऑनलाइन होमवर्क होता है। अफसाना मैम का ग्रुप 10 बजे बंद हो जाता है, तो पता होगा तुम्हें। वो तो अभी हो गया तो हम वही बोलते थे। ठीक है, थैंक यू सर। So thank you so much, Chaitanya. I'll call you Chaitanya. Nobody is calling you by a first name. It's a beautiful name, and that was very heartening to listen to his experience, which was quite different. I would agree when he said that generally things don't happen like that, but somewhere your responses must have been good. Otherwise, they would not have taken you, right? So thank you so much. Does anyone have any questions to ask him? I think he's made it quite easier.